So hello everyone and welcome to our new video, and this time the topic will be this current electricity. And as far as we have reached, this is the third chapter of the NCERT textbook, and just like we have in other chapters, this chapter will also have only 4 pages. Like, I'm not missing a single thing, even the reduced labels is there. Like, if someone want to study, they can study. Not study exactly. If they want to have notes, they can use these. Okay, so let's get started. One more thing, my request is to to watch the video. Most of you, as I've seen the average watch time, like you just download the notes and leave the video. My request is to watch the video because it might not make sense if you don't watch video. Like, watching it once is enough, more than enough. But at least you will be able to relate if you watch it. So uh, let's start. So chapter is current electricity, as I have told, and now what is electric current? First line definition. You should know this, that it is the rate of flow of charge I is equals to dq by dt, and if current is steady, then we can write it as I is equals to q by t. dq by dt means a small amount of change. Like, this represents the instantaneous change, dq by dt. But if the current is steady, then instantaneous change will be equal to the average change. Like, everything is same in both the cases. So we can directly write q by t. It will give the same answer. And SI unit is ampere. Questions from this topic. We get most of the questions are in MCQs. You will get as dq is equals to t cube plus t square plus 3t plus 5. I mean dq by dt. Or rather than this, they will give I is equals to dq by dt is equals to this expression. Like, hide this thing. This will be the question. I is equals to t cube plus t square plus 3t plus 5, for example. And you will be asked to calculate how much current passes through the wire or any appliance in 2 seconds. How will you solve? Now we know that I is equals to dq by dt. Now we will use our basic calculus, that is dq is equals to t cube plus t square plus 3t plus 5 dt. Integrating it, q is equals to t to the power 4 by 4 plus t cube by 3 plus 3 by 2 t square plus 5t plus c. Okay. Since c is introduced, they will also give that there was no current initially or something like that. Or maybe charge flown between t is equal to 1 and t is equal to 2. So c will get cancelled out. You will calculate. First you will put 2. Like, whatever it is, you will solve it. Basic calculus. Now, the next thing is current flows from higher potential to lower potential. Very true. Like, it's common sense. Current will flow from higher potential to lower potential. It has always happened this way. Now, causes of flow of current. Flow of electrons in conductors. Like, what are the situation in which we can say that current is flowing? So one is flow of electrons that happens in conductors. They are the major carriers, majority carriers, I mean. They are the only carriers in conductors. Holes in semiconductors, like both electrons and holes, both can function in semiconductors. And ions in solutions. In solutions, we generally don't see that electrons are flowing. So
ions are more suitable for this. I mean, like we have HCl solution. It will break down into H plus and Cl minus, and those H plus and Cl minus will be contributing in the flow of current. I guess I should get back to Hindi, like English. Now, अगला है हमारा टॉपिक EMF, electromotive force. It is a work done in transporting a unit positive charge from lower potential to higher. अब कोई कहेगा कि अभी हमने हायर टू लोअर कहा था, अब एकदम से लोअर टू हायर हो गया. इसका सीधा जवाब है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा, चलो मैं पूरा अच्छे से समझा ही देता हूँ. जैसे हमने क्या पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इसमें हमने पिछले चैप्टर तक पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और मान लो ये एक प्रोटॉन है. ठीक है, तो इसमें फोर्स लगेगी दोनों. इस पे तो यूं लगेगी फोर्स प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी इधर, अवे फ्रॉम इट. एंड ये भी हमें पता है कि इसका पोटेंशियल हम काउंट करें, चलो मान लो, तो इट इज KQ/R दोनों के लिए. अब सिंस पॉजिटिव वाले के लिए KQR, यानी अगर वो इसकी डायरेक्शन में जाएगा, R छोटा हो रहा है. सीधे शब्दों में, हर तुम्हारा प्रोटॉन होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी इन द डायरेक्शन. लाइक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर चीज टेंड करती है कि वो लीस्ट पोटेंशियल पे हो. लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा उल्टा होता है. रीजन बीइंग इसका चार्ज ही उल्टा है, इसके लिए सिस्टम उल्टा रहेगा. ये लोअर से हायर जाने की कोशिश करता है, बिकॉज पोटेंशियल दोनों के लिए आप सेम कहोगे. आप तो नॉट सेम, बट जैसे आप तो मतलब हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते हैं रादर देन नेगेटिव चार्ज. तो कन्वेंशन के हिसाब से ये राइट वाली डायरेक्शन है, जो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, दैट इज लोअर पोटेंशियल. बट फॉर इलेक्ट्रॉन उसके लिए वो उल्टा रहेगा, उसके लिए लेफ्ट वाली डायरेक्शन हुई है. तो इसलिए वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन टेंड करता है कि वो हमारे कन्वेंशंस के हिसाब से जो लोअर पोटेंशियल है वो उस तरफ जाए, हायर पोटेंशियल की तरफ, लोअर से. ओके, that was all because of charge. ठीक है. Now, in ionized gas, ये भी हमने छोड़ दिया. Ionized gas, both electron and ionized gases serve as. Very true. Ionized gases में मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाते हैं हमारे, और आयनाइज्ड, यानी मान लो बहुत गंदा एग्जांपल है सोडियम आयनाइज्ड, मतलब कुछ भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं. सीधे शब्दों में, आयनाइज करने की गैस को बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो इतनी आसानी से नहीं होता. बट या इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और वो चार्ज, मतलब दोनों चीजें आपकी मूवेबल होती हैं. सॉलिड्स में जैसे हमने यहाँ लिखा, कंडक्टर्स में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि दोनों कैरी करे चार्ज को. ठीक है, क्योंकि इसमें कंडक्टर्स में तुम्हारा आयन होता है, वो तो बाउंड है ना. बस ये चीज थी. EMF का हमारी बात हो गई. ये इसका सिंबल है जो हम बनाते हैं. ये लंबी वाली साइड मतलब पॉजिटिव, छोटी वाली साइड मतलब नेगेटिव, पता ही होगा सबको. ठीक है. EMF can also be defined as potential difference between two terminals of battery when there is no current in the circuit. इस चीज का रीजन बाद में बताएंगे कि क्यों नो करंट लिखा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, अब इसके लिए पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं. All the electrons move in zigzag motion with average thermal speed of these in order of 10 to the power 5. ठीक है. When an electric external potential difference is applied, electric field is developed and free electrons experience F or EE opposite to E. ठीक है. Due to acceleration caused and collide with each other. ठीक है. Due to चलो मैं तुम्हें पूरा सीधे शब्दों में बताऊँ, मुझे खुद ही पढ़ने में अजीब लग रहा है. हाँ, तो थिंग इज जैसे आपका कंडक्टर होता है, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे मतलब समझ जाओ, इलेक्ट्रॉन्स ये सारे.
सब जिगजैग में घूम रहे हैं, कोई इधर कोई इधर। तो हम मान के चलते हैं, और मतलब मोस्ट ऑफ इट ट्रू ही है कि इलेक्ट्रॉन शांत तो नहीं बैठने वाले, दे हैव अ थर्मल एनर्जी। जब उनको हीट मतलब नेचर से हीट ले रहे हैं तो दे विल मूव। जब हिल ही रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि उनका नेट करंट जीरो है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि नेट करंट हमें पता है कि जीरो होता है। तो यही रीजन हो सकता है कि इतना रैंडम मोशन है कि कुछ ना कुछ करके एड अप करके वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन का मतलब है। और ये मतलब इन ऑर्डर ऑफ 10⁵ थर्मल स्पीड, मतलब तुम्हारी समथिंग 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड ऐसी स्पीड होती है, लेकिन सब इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, अब हमने इसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ पर, कितनी फोर्स लगेगी इस पे? अपोजिट डायरेक्शन। इसकी फोर्स लगेगी इस पे ई ई, वेरी मच ट्रू, यही हमारी होती है क्यू ई। और अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे पॉजिटिव चार्ज पे लगती है उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक सिंस ई नेगेटिव होता है तो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये सब हमें पता ही ऑलरेडी। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस, ठीक है ओके। अब क्या होता है, अभी तक तो सब रैंडम घूम रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, मतलब पोटेंशियल लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से, नॉन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो एक डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग जाते हैं। मतलब अब जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन अब जा तो सारे ये यूं ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम। ये चीज भी याद रखना, कोई होगा जो उल्टा भी जा रहा हो। वो रीजन उसका ये है कि वो कोलाइड भी करते हैं आपस में। और तो वही है, जैसे अब ये यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ आ रहा है, तो आपस में उनके ऊपर फोर्सेस भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो कुछ इरेगुलरिटीज की वजह से कोलिजन्स भी होते हैं। कोलिजन मतलब फिजिकली नो टू थिंग्स कैन टच ईच अदर। न्यूट्रॉन्स आई गेस कर सकते हैं, या मे भी नहीं कर सकते, फिजिकली कोई चीज टच नहीं होती, लेकिन हाँ वो इतना ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि ये वाला जैसे है ये इसके अपोजिट जाने लग जाएगा एकदम से, फिर वो वहां जाके किसी और से टकराएगा, फिर वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था कि अगर तुम मान लो 1 वोल्ट भी लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन इतनी ज्यादा होती है कि 1 सेकंड भी अगर तुम विदाउट कोलिजन रह गए ना तो यू विल क्रॉस द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, थ्योरेटिकली भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, नाउ तो हाँ वो लगातार कोलिजन्स होते हैं, और इसमें ऑन एन एवरेज जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं वीटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ऑन एन एवरेज हम एक वो लेके चलते हैं कि हर दो कोलिजन, मतलब हर कोलिजन के बीच में एक टाइम स्पैन होगा ना जिसमें कोई कोलिजन नहीं होगा, उसको हम लेके चलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिप्रेजेंट करते हैं हमसे टाउ से। ये तुम्हारा टॉर्क वाला ही है, एंड इसको लिखते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट भी हो गया। ठीक है, अब ये है तुम्हारा थोड़ा सा डेरिवेशन काइंड ऑफ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, E इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, हाँ मैंने यहाँ लिख दिया ये E यानी फोर्स इज इक्वल्स टू ma, A शुड बी इक्वल टू E बाय m। अब E बाय m में तुम मास रख के देखना एक बार, E होगा तुम्हारा 10⁻⁹ समथिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर मैं 1 न्यूटन पर कूलम भी ले रहा हूँ, तो समवेयर अराउंड लाइक उसको तो मैं 1 ले लिया तो खत्म हो गया काम, अपॉन में 10⁻⁻31 kgs। समझ रहे हो ना, पावर में जाएगा वो 1.7 इंटू 10⁻11। ये तुम्हारी होगी एक्सेलरेशन, यानी 1 सेकंड में तुम चल गए जीरो से, अगर 1 सेकंड में तुम इसमें रह गए 10⁻11 मीटर पर सेकंड तुम्हारी स्पीड होगी। तो प्रीटी मच ऑब्वियस कि ये पॉसिबल नहीं है, आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता। ठीक है, फॉर ith इलेक्ट्रॉन यानी कोई
nth इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसके हम मान के चल रहे हैं ui इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ith इलेक्ट्रॉन, v फाइनल वेलोसिटी है, t रिलैक्सेशन टाइम है, ऑल्सो vi इज इक्वल्स टू ui प्लस ati, हर एक के लिए इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम है, ये सब कुछ हमने इंडिविजुअल ले लिया। अब हम सम अप कर रहे हैं हर एक का, हर एक की हमने फाइनल वेलोसिटी ऐड कर ली, हर एक की हमने इनिशियल ऐड कर लिया, और हर एक का एक्सेलरेशन भी ऐड कर लिया। एक्सेलरेशन सेम होगा वैसे तो, बट हाँ मतलब सेम होगा ना, ये चीज तो कांस्टेंट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड समथिंग। अब इसको हमने ऐड अप करा और हमने उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इस पूरी इक्वेशन को हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया है, जो सम लिया था हमने। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला नहीं हो गया कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इनिशियल एवरेज स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अब हम इसको लिख सकते हैं वी एवरेज प्लस यू एवरेज प्लस ए टी एवरेज, ठीक है। लेकिन और हमें भी पता है कि वी यू एवरेज हमने जीरो लिया था क्योंकि इनिशियली रैंडम है, तो एवरेज ऑन एन एवरेज जीरो होते हैं। तो वी एवरेज, और हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी हमारी, क्योंकि हमने उसी को ऐसे डिफाइन करा था। और टी एवरेज इज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी इज इक्वल्स टू, यानी तुम्हारा ये इज इक्वल्स टू ए टाउ, और ए को हमने रखा। अब इसमें एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि तुमने कितने टाइम तक वो लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है या समथिंग, क्योंकि ई भी कांस्टेंट है, ये कैपिटल ई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, एंड टी भी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम भी हम एवरेज लेके चलते हैं। अब ये लिखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी एक पर्टिकुलर जगह पर, मतलब डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा टाउ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। रीजन बीइंग इन सब में कहीं भी ये कितनी देर के लिए लगा उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। सिंपल रीजन है, हमने सब कुछ एवरेज लिया था, इसी वजह से नहीं आता है सब। ये चीज याद रखना, क्योंकि हमारी क्लास में भी काफी बच्चों ने पूछा था। बट मतलब ऑब्वियस सी बात से, जब हमने सब कुछ एवरेज लिया था और हमने डिराइव भी एवरेज लेके करा है, तो इट मेक सेंस कि वीडी भी कांस्टेंट आएगा एक पर्टिकुलर केस में, ठीक है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, अब इसके रिलेशनशिप्स वगैरह पढ़ेंगे। तो एज्यूम करा हमने कंडक्टर लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर इज इक्वल्स टू एल बाय वीडी, मतलब वो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये मतलब एवरेज है और लेंथ कांस्टेंट है, हमने लिख दिया। आई, और हमें आई भी पता है कि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। चलो मैं तो लिख के दिखाता हूँ ये चीज। ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह तो हमारा वही सब रहेगा। तो अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें से जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहली बात तो कि टी हमारा जो टाइम टेकन होगा फॉर इलेक्ट्रॉन टू कम फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड विल बी लेंथ एल अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मेक सेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद, हमें भी पता है कि आई करंट इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब क्यू बाय टी में अब मैं तुम्हें देखो एक चीज बता दूं, काफी बच्चे भूलते भी हैं ये चीज। अगर हमें निकालना है कि इसमें से एक गिवन टाइम पीरियड में, यानी एक सेकंड में मान लो कितना चार्ज जा रहा है, तो हम उसके लिए ये नहीं कर सकते इसकी, हाँ नंबर डेंसिटी हो लेनी है कि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब फ्लोइंग भी नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम इसको देख, एक वॉल्यूम हमें एक छोटा सा हिस्सा पता है कि इसके अंदर कितना वो है, मतलब यहाँ लिखते हैं बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमें पता है कि कुछ समथिंग समथिंग एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे के अंदर हम कितना बता सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते कि नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सीधा एक यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय फुल वॉल्यूम, उतना ही तो होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो
वी कैन राइट इट एज, और वॉल्यूम भी हम कैसे लिखें, हमें 1 सेकंड में निकालना मान लो, तो हम ये नहीं ले सकते कि 1 सेकंड में मतलब इस जगह से कितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। सिंपल थिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू सरफेस एरिया, इस फेस से 1 सेकंड में मतलब जो यहाँ वाला होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था जो 0 सेकंड पे, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उस हिसाब से वो इतनी दूर पहुंच जाएगा सर्टेन अमाउंट, और उतने ही उसके पीछे जो व्यक्ति था वो भी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, तो इस फेस से कितना चलेगा, तो हम वीडी इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, चार्ज तो हो गया एन इंटू, ये हमने सब डिस्टेंस निकाला, ठीक है, कि मतलब कितना वो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे, तो होगा एन ए वी डी। नंबर डेंसिटी तो होनी चाहिए, ये तो होगा कि कितना हुआ, अब हम नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आगे गया, और ई भी चाहिए हमें, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अब ये हमारा हो गया, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अगर तुम में से किसी ने पढ़ा हो तो यही है, एन ए ई वी डी, फाइनल एक्सप्रेशन यही है। लेकिन एक और तरीका है इसे समझने का, कि मैंने क्या बोला अभी, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम इसकी, ए इंटू एल, ठीक है, ये और इंटू चार्ज, कितना चार्ज है हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूँ, और अपॉन में हमने टी, यानी इस एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया ये, और इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, मतलब इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं, और ये हो गया एन ए ई एल बाय टी। कहने को अब एल बाय टी में तुम टी को लिख दो एल बाय वी डी, या फिर एल बाय टी तुम्हें लिख के पता लग रहा होगा ये वी डी ही है, यानी ये यहाँ से उठा के यहाँ रख दो एल बाय टी को वी डी, फिर तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा एन ए ई वी डी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओम्स लॉ, करंट हमने निकाल लिया ऊपर से एन ए ई वी डी, ये एन ए ई वी डी है ना, तो बोल बोल के याद रख लो, मुझे जैसे प्रॉपर याद हो गए थे, बोल सुनने में अच्छा लगता है एन ए ई वी डी, तो एन ए ई वी डी, ठीक है, वी डी को हमने वी डी ऊपर अभी निकाला था हमने, ई एम बाय ई एम टाउ, ई टाउ बाय एम, सो वो हमने उठा के रख दिया वी डी को ऐसे। अब हमने ई को कैपिटल ई, यानी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको उठा के रख दिया वी बाय एल, अभी पढ़ा था ना हमने, और मतलब पिछले चैप्टर में, लेकिन हमने कहा था कि ये तो डी मतलब एक इंस्टेंटेनियस वाला लेते हैं, बट यहाँ पर हम आगे चले स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट में तुम डायरेक्ट आके लिख सकते हो, क्योंकि देयर इज नो चेंज विद टाइम, तो इसको हमने डायरेक्ट v बाय एल उठा के रख दिया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, v इज इक्वल्स टू आई इंटू, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उठा के इधर उधर कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन तुम्हें दिख ही रहा होगा, ठीक है, तुम्हें याद है तुमने 10th में पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू आई आर, आई दिख रहा है, आई आ गए बाहर, ठीक है। अब हमारा जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसका क्या मीनिंग है, आर को याद है, रो एल बाय ए, तो ये रो है तुम्हारा एम एन ई स्क्वायर बाय आर, और ये है तुम्हारा एल बाय, आज तुमने पूरी डेरिवेशन देख ली इसकी, ये हमने यहीं से निकाला है एन ए वी डी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन उठाया और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखा है, बस, एंड तुम्हारी डेरिवेशन थी। इसकी ऐसा यूनिट पता ही है रेजिस्टेंस की सबको, ओम्स होती है, और ये साइमन होती है सॉल्यूशंस के लिए, एंड रेजिस्टिविटी की हमें पता ही है, ओम मीटर, ठीक है। कंडक्टिविटी सुन के पता लगता है कि मतलब विटी देख के पता लग जाता है कि एक स्पेसिफिक उसके बारे में, मटेरियल के बारे में बात हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी है काइंड ऑफ, टी वाई से पता लग जाता है प्रॉपर्टी की रिलेटेड होगा, तो प्रॉपर्टी शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो ये होगा इनवर्स तुम्हारा रेजिस्टिविटी का, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा जो कि हर मटेरियल के लिए अपना खुद का होता है एक गिवन टेम्परेचर पे, एंड कंडक्टेंस, यानी और कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये होता है एक स्पेसिफिक केस के लिए, जो तुम्हारी गिवन कंडीशन से उसके साथ चेंज हो जाता है। तो ये कंडक्टेंस है 1 बाय रेजिस्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी है 1 बाय रो, उन्हीं का उल्टा करना बस, तुम्हें रेसिप्रोकल लेना हो जाएगा तुम्हारा, ये याद करने लायक भी चीज नहीं है, सिर्फ इसके तुम वो देख लेना,
यूनिट्स भी क्या याद करोगे, ऊपर वाले यूनिट्स याद है तो उसका भी इन्वर्स कर दो। नाउ करंट डेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, जे वेक्टर। रेशियो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर एंड एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, आई अपॉन, मतलब पर यूनिट एरिया तुम्हारे एक फेस से कितना करंट जा रहा है, मतलब मैं इसको काटू बीच में से, तो इसमें से कितना पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया कितना करंट जाएगा। मतलब करंट डेंसिटी यार, मतलब ये मैंने एक गलती करी थी। करंट डेंसिटी मुझे लगता था कि डेंसिटी वॉल्यूम की आदत होती है ना, तो मैं आई बाई वी ले लेता था। काफी क्वेश्चंस गलत करे मैंने इसे। ये चीज तुमने याद रखना ना कि करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया होता है, और एरिया भी परपेंडिकुलर, जैसे तुमने वहां पढ़ा था ना, एरिया वेक्टर होता है तुम्हारा। अब ये करंट जा रहा है तो ये नहीं है कि तुम इसमें यू लगा रहे हो तो सब कुछ, मतलब एरिया वेक्टर के हिसाब से देखा जाता है कि अब सरफेस तुम्हारा यूं हो जाएगा, करंट तुम्हारा यूं है, तो ऑब्वियस सी बात है सारा ये निकल गया। ये तो कुछ गया ही नहीं ना टेक्निकली इससे, तो वो ये परपेंडिकुलर जितना जा रहा है उसको हम काउंट करते हैं। इस वाले में भी जैसे मान लो अगर ये आ रहा था, मतलब सीधे शब्दों में समझाता हूँ, ये करंट जा रहा है, इसी के अंदर अगर मैं ऐसे ले लूं, तो तुम ये तो नहीं है ना कि अब एरिया बढ़ा दिया तो करंट भी ज्यादा जा रहा है। तुम्हें सिर्फ परपेंडिकुलर काउंट करना है कि परपेंडिकुलर उस करंट का तुम परपेंडिकुलर वेक्टर कितना ले सकते हो, ये जितना जाएगा। तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें था ना टॉपिक, सेम वही है। बस तुम ये याद रख लेना, आई बाय ए, और आई को लिख दो एन ए वी डी, ए कट जाएगा, एन ई वी डी आ जाएगा तुम्हारा ये, वी डी को तुम लिख दोगे ई टाउ बाय एम। इसी को मतलब इधर उधर करते रहना तुम, हो जाएगा। ये तो अब तुम्हें देखी गया होगा, ई बाय रो लिख दिया मैंने, यानी ए एम एन ई स्क्वायर टाउ, ये जो एक्सप्रेशन था सेम ई बाय रो बन गया एट द एंड। और रो को तुम लिख सकते हो सिग्मा, यानी तुम्हारी कंडक्टिविटी। ये ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना क्योंकि ये एक तो नया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, 10th में तो था नहीं ये सब। कर लेना, मुझे नहीं पता मैं सिलेबस में भी क्या है, स्टिल मैं दे ही देता हूँ। ठीक है, अब है कलर कोड्स। ये चांस पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता तुम्हारे सिलेबस में है नहीं है। ये होता है कि एक रजिस्टर होता है ना, तो उसका मैं जैसे तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये होता है तुम्हारा रजिस्टर, मतलब रेजो कम है लेकिन इस मतलब इसमें बैंड्स बने होते हैं, रजिस्टर ऐसा दिखता है इन रियलिटी। ठीक है, तो बैंड्स का अब हम मीनिंग समझेंगे कि उन बैंड्स का मीनिंग क्या है। हर रजिस्टर का अपना अलग खुद का बैंड होता है। तो ये मान लो हमारा ब्लू ग्रीन रेड एंड सिल्वर लगे होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। निमोनिक्स देख लेना अगर गूगल पे कहीं मिल रहे हो कोई, या तो मैं स्कूल में भी बता दिए होंगे फिर तो रेजिस्टेंस होता है, अब मैंने R1 R2 का मतलब है, ये रिंग 1 है ना, पहले रिंग का मतलब R1 R2 यानी 25 लिखना है। मान लो ये क्या हुआ, R1 R2 यानी मेरी ब्लू ग्रीन, ब्लू 6 है, ये 5 है, तो R1 R2 मतलब इसको एज ए नंबर करना 6 5, यानी 65 है ना, और इंटू R3 इज रेड। रेड का मीनिंग क्या हुआ, 10 टू द पावर 2। ओके सॉरी, ये मैंने 10 टू द पावर -2 लिख दिया गलती से, आई मेक मिस्टेक। तो 65 10 टू द पावर 2 यानी 6500, मतलब जो भी है तुम्हारा देख लेना, मे बी मैंने टेबल में मिस्टेक कर दी हो, मैं वीडियो के बाद एक बार चेक कर लूंगा इसको, अगर कोई गलती होगी तो मैं इस पीडीएफ को करेक्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट 3 बैंड्स हो गए। अब फोर्थ बैंड होता है हमारा एक्यूरेसी, मतलब जो मैंने वैल्यू ऊपर बताई है उसमें कितना एरर आ सकता है, मतलब इस रेंज के बीच में एरर आ सकता है, तो दैट इज गोल्ड 5% का एरर होगा, मतलब हो सकता है इतना ऊपर नीचे जा सकता है। फिर सिल्वर पे 10% एंड नो कलर पे 20। तो ये भी तुम्हें याद रखना, ये 3 कलर, मतलब एक तो तुम ये भी याद रखो, सिल्वर तो तुम पोजिशन ऐसे याद रख सकते हो कि बेस्ट कंडक्टर है, मिनिमम होगा उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हिसाब लगा लेना। तो और ये आर एन इज द नंबरिंग नंबर, हाँ ठीक है, ये मैंने मेंशन कर देता इनकेस कोई बच्चे डायरेक्ट डाउनलोड करे। अब मोबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी डी बाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं मोबिलिटी को। मुझे इसका मतलब
समझ में तो नहीं आया क्यों हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चंस में तो लगता है कि हाँ भाई काम की चीज है, बट वैसे सिग्निफिकेंस अब तक पता नहीं लगा। देख लेना तुम्हें लगेगा अगर। बी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम और अपॉन में ई कट गया, ई टाउ बाय एम हो गया। ई और एम कांस्टेंट है। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस, अगर किसी ने 10th में 11th में वो पढ़ा है थर्मल प्रॉपर्टीज, तो ये एक्सप्रेशन तुम्हें जाना पहचाना लगेगा, अल्फा डेल्टा टी वाला, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये उसी टाइप का है। रो एट अ गिवन टेम्परेचर रो नॉट, एक हमें रो नॉट को पता है कि क्या टेम्परेचर है, मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर है, एक का पता एक का नहीं पता। अगर जिसका नहीं पता वो बाहर रखो, और इसमें रखो रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस, मर्जी है तुम्हारी कहीं भी रखो, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और डेल्टा टी मतलब कितना डिफरेंस है, प्लस माइनस अकाउंट में रखना, प्लस माइनस बाद में बढ़ रहा है टेम्परेचर तो प्लस होगा तुम्हारा डेल्टा टी, और घट रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। एट लो टी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इन केस ऑफ अलॉय मतलब वो सुपर कूलिंग वाला सिस्टम हो जाता है कि तुम्हारा फिर डिपेंड नहीं करता क्या टेम्परेचर है, हर चीज एक आइडियल फॉर्म में बिहेव करने लग जाती है। इन केस ऑफ अलॉय नाइक्रोम एंड मैंगनीन हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी छोटा, मतलब तुम्हारा डेल्टा टी कितना ही बड़ा हो, वो बहुत कम, मतलब डेल्टा टी बहुत कम असर डालेगा। एक मालूम मैंने 2 केल्विन बढ़ा दिया, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दी, कुछ भी बढ़ा दिया, इट वोंट मैटर, बिकॉज वो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, वो चेंज इतना आने नहीं देगा मिड पे आने के बाद, ठीक है। और इन सेमीकंडक्टर्स मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, सेमीकंडक्टर्स में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले हिसाब मत लगा देना। ओम्स लॉ में भी इसके लिमिटेशन है कि हर जगह ये काम नहीं करता, और वो उसमें से एक ये है लिमिटेशन। हाँ, इन सम सब्सटेंस आई वी डोंट होल्ड ट्रू एंड शो नॉन ओमिक बिहेवियर, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस एंड आई इज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ वो मतलब हीटिंग की वजह से तुम्हारा फिर ये ऊपर वाली ये इक्वेशन आ जाती है काउंट में, रो आर इज इक्वल्स टू, मतलब स्ट्रेट फिर रह नहीं पाता, इसलिए टाइम पीरियड में लैब में भी तुमने देखा होगा कि बार बार कहते हैं बंद करो, रीडिंग लेते बंद कर दो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज आने लग जाता है, तो फिर वो वैल्यूज खराब हो जाएंगी सारी, एक्यूरेट नहीं आएगा। इन केस ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है, रीजन हमें सेमीकंडक्टर्स में जाके पता लगेगा क्यों नहीं आता, पर ये याद रखना। इन गैलियम आर्सेनाइड, ये एक्चुअली ना काफी बढ़िया कंपाउंड है, गैलियम नाइट्राइड वगैरह, ये जो चार्जेस के लिए यूज हो सकते हैं, कभी टाइम मिले रिसर्च करने इसके बारे में। इसमें सेम करंट के लिए अलग अलग वोल्टेज सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसमें ये है ग्राफ, आईवी ग्राफ, मतलब मेरा ये करंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ करंट के लिए, मेरे पास तीन तीन वैल्यूज है, मैं बता रहा हूँ ग्राफ ऐसे दिखता है एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ सेल्स, सेल हमारा रिप्रेजेंट होता है इस फॉर्म में, ये हमारा एक पूरा सेल है कंबाइंड, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हम इसको कहते हैं, वैसे तो ईएमएफ कहना चाहिए ई, पर जनरली हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये आर हुआ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance मतलब अभी बता, when the current starts flowing in the circuit the same current passes through the cell and it provides, मतलब तुम्हें पता है हर चीज आइडियल नहीं होती, मतलब कुछ भी आइडियल नहीं होता ऐसे तो इसमें क्या होता है, सेल भी अपने आप एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे कि हमारी वायर हम मान के चलते हैं ना, वायर में से कोई रेजिस्टिविटी है ही नहीं वायर की, तो आइडियल है वो, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, कुछ नहीं है उसमें से, जितना गलत वो है ना उतना ही गलत ही है। इसमें भी तुम्हारा सेल भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस देता है, कई बार ज्यादा भी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा मतलब कि ये नहीं है कि वायर की तरह बहुत छोटा हुआ, समटाइम्स लाइक कंसिडरेबल अमाउंट होता है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल व्हेन आई फ्लो, ठीक है, अब सीधा बताता हूँ। अगर जैसे हमारा जनरली हम देखते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है उसे, ठीक है, और अगर उससे उल्टा हो रहा है तो आप चार्ज कर रहे हो सेल को। सारे सेल चार्ज नहीं होते, घर पे बैठ के अपने रिमोट के सेल को चार्ज करने में बैठते हैं ना, टाइप्स होती हैं इनकी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा है ई माइनस आर, मतलब जो वोल्टेज अभी सर्किट में प्रोवाइड करने वाला है वो है ई माइनस आई आर। आई क्या है, आई है कि
जो मेरा सर्किट है उसमें कितना वो रहेगा, करंट कितना फ्लो करेगा एट दी एंड, और यह है ई प्लस आई आर, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल E plus IR होगा। अब इसका रीजन बताता हूँ। दैट वी कैन क्लियरली सी दैट V इज इक्वल टू E आइदर व्हेन, अच्छा ठीक है, व्हेन की जगह व्हेन करना, ये मैं मिस्टेक है, सही कर दूंगा। आइदर व्हेन I इज इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन देख के पता लग रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा मैंने लिखा नहीं। और हाँ ये भी रखो, R अगर 0, इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो इसको हम आइडियल सेल कहते हैं। क्वेश्चंस में हम आइडियल सेल जनरली आ जाता है सिंपल क्वेश्चंस में। तो उसका मतलब होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जो उसमें तुम्हें वोल्टेज बताई हुई है, वोल्टेज वही प्रोवाइड करेगा, वही उसका ईएमएफ है, वही उसकी वोल्टेज है जो वो प्रोवाइड कर रहा है। ई माइनस आई आर का मीनिंग तुम्हें मैं बताता हूँ इस तरह। ई माइनस आई आर, अब मान लो मेरा ये सर्किट है, मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ, इसको इग्नोर करना, मैंने ऐसे गंदी तरह से बनाया है, ठीक है। और अब इसमें ये मेरा सेल है। यार तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये सेल मतलब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर एक्चुअली रजिस्टर ही तो है एट द एंड। तुम सीधा ये भी तो लिख सकते हो कि अब करंट कितना होगा, वी बाय आर। वी कितना है, हमें ईएमएफ जो दे रखे वो ई अपॉन आर कितना है, ये मान लो कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, आर प्लस आर इक्वल्स टू आई। ये हम बाद में भी एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, लेकिन अभी देख लो तुम। आई इज इक्वल्स टू आई आर माइनस आई स्मॉल आर। आई आर हमारा क्या होता है, जो हम अब तक पढ़ रहे थे, V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर। सॉरी ये माइनस है, तो ये मतलब ये माइनस हो जाएगा ना, V E माइनस आई आर। ये है सिंपल सा फंडा कि ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे आता है, पहले के नहीं वैसे, ठीक है। तो ऐसे आ गया। और अगर इसके डायरेक्शन में होता तो एक तरीके से आप तुम चार्ज कर रहे हो, वो रेजिस्टेंस मतलब अब उल्टा काउंट होता है कुछ, तो ये तुम प्लस माइनस तुम याद रख लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की चीज भी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड रेजिस्टेंस, देखो आर रेजिस्टेंस सीरीज में सबने पढ़ा हुआ है, ऐसे होते हैं, रीजन भी लिख दिया मैंने। आर इन पैरेलल 1/R1, ये सब लोग 10th में पढ़ा हुआ है, मैं वापस नहीं बताने वाला था। सेल्स इन सीरीज, अब सेल की बात है, सीरीज में लगाओगे फर्क नहीं पड़ता। पोलैरिटी देख लो, ये चीज ना 10,000 बार याद रखना, पोलैरिटी ऑफ सेल बहुत मैटर करती है इसमें। क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन है इसे यूं दे दिया, सर्किट है बना के मैंने कुछ दे दिया, अब इसके बीच में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट। देख के क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा सारे एक दूसरे के साथ, मतलब ये इसको पुश दे रहा है, ये इसको पुश दे रहा है, पुश दे रहा है, पुश दे रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। कितना हुआ 7 3, ये हुआ 18 वोल्ट्स, ए और बी के बीच में हुआ 18 वोल्ट्स, ठीक है। सेम मैं बनाता हूँ इन्हीं बैटरीज के साथ, ठीक है। ए एंड बी, 6, अब मैंने इसको कर दिया 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट। क्या उस हिसाब बना, 6 वोल्ट इधर, मतलब ये इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है, यानी 5 ज्यादा तो 2 -5 -3, इस डायरेक्शन को मान रहे हैं हम, ठीक है। अभी 2 -3 -6, और ये अपोजिट है -6, और ये -4, और फिर ये 6 और ऐड हो गया, तो एट द एंड यूं जा रहा है तो 2 वोल्ट्स के आसपास तुम्हारा इफेक्टिव वोल्टेज होगी। अगर इनको हम साथ लगा दें एक सेल के अंदर, सेल एट द एंड 2 वोल्ट ही देगा। सेम अरेंजमेंट इस तरह लगा दिया, 18 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है। इतना फर्क है तुम्हारे में। और नेक्स्ट थिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस। यार अब इसका मतलब क्या ही बताऊं मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस अब इसी में मान लो मैं 2 सेल ही ले रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस में पोलैरिटी तो होती नहीं है कुछ, तो इसमें तो तुम पोलैरिटी तो तुम सेल के काउंट करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को तुम रेजिस्टेंस ही काउंट करो। भूल जाओ कि वो इंटरनल नाम की कोई चीज थी, मैंने आज तक उसको इंटरनल नहीं माना है, जनरल मान लो उसे, बिल्कुल जनरल, कि एक ये आइडियल सेल है एंड ये आइडियल सेल है E1 E2, और ये दोनों वो हैं नॉर्मल तुम्हारे रजिस्टर्स हैं। इंटरनल रजिस्टर्स भी भूल जाओ, ये है क्वेश्चंस में लिख देना, लेकिन इसको ट्रीट वैसे करना, ठीक है।
तो वही उसमें जो रेजिस्टर्स वाले रूल चलेंगे इन पैरेलल, ठीक है, सेल्स। तो पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस तो मैंने कही वैसे ही बिल्कुल उसी तरह ऐड होंगे जैसे हमारे नॉर्मल होता है 1/R1 1/R2 1/R3 अप टू 1/Rn। लेकिन अब ये चीज है E इज इक्वल टू मतलब E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, जो हमने ये चीज लिखी है इसमें डेरिवेशन इसकी यार तुम बुक में देखना, प्रोबेबली मैंने यहाँ तो नहीं दी होगी या फिर शायद पिछली वीडियो में, आई डोंट रिमेम्बर। इसका पता है मीनिंग क्या होता है? E बाय R को तुम क्या लिख सकते हो? E1/R1 को एक तरीके से V बाय R हो गया ना तुम्हारा, यानी करंट नहीं दे रहा है। तो पैरेलल में जब तुमने लगाया, मतलब ये याद रखने का तरीका है, हमने ये नहीं पढ़ा जब पैरेलल में कोई भी सर्किट होता है तो I1 यहाँ जा रहा है, I2 यहाँ जा रहा है, I3 यहाँ जा रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 ये I था प्लस I2 प्लस I3। दिस इज द थिंग। इसको अब I रिजल्टेंट I को क्या लिखोगे तुम? E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 क्या होगा तुम्हारा? E1 अपॉन R1 एंड सो ऑन। अब ये याद रखने का तरीका है, ये तुम पेपर में डेरिवेशन जैसे में लिख देना, ठीक है, डेरिवेशन किताब से पढ़ने को। नाउ किरचॉफ रूल्स, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। इट स्टेट दैट एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट द सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग सिंस चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड। ये मैंने लिखा है, ठीक है। मीनिंग जैसे I2 जो भी करंट आएगा वो बाहर तो निकलेगा ही ना, एक्यूमुलेट तो नहीं होगा। जैसे तुम्हारा उसमें भी था ना 11th में कि वाटर जितना एंटर कर रहा है तुम्हारे पाइप में, फ्लूइड्स में था ये शायद, जितना पाइप में एंटर कर रहा है, मान लो उसका मैंने सरफेस एरिया बदल दिया, वाटर जितना आया उतना ही निकलेगा। जितनी स्पीड से निकल रहा है वो बदल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, वो कंजर्व रहेगी। इसमें इस तरह वाटर की तरह है ये करंट, करंट जितना है करंट उतना निकलेगा भी। तो ये क्योंकि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, अगर रुक चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो यानी बीच में कहीं रुक गया, ठीक है, होता नहीं होगा। लूप रूल, अब ये है लूप रूल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक यही यूज होगा पेपर में, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं except for parallel derivations. It states that at any instant algebraic sum of potential difference across various elements of a closed loop in a particular circuit must be zero। यानी तुम इस सर्किट में इस हिस्से को एज अ होल लेने की बजाय इंडिविजुअल भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो, मतलब चिल नहीं कि इसके अक्रॉस। अब जैसे इस सर्किट में इवन आता है, काउंट हो रहा है, तो इन चारों एलिमेंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इवन होगा। इस वाले में E2 आ रहा तो इन चारों के नहीं, यहाँ भी 3, सॉरी 2, सिर्फ R1 और ये R3, इनके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो होगा इवन के बराबर, एंड इन दोनों के क्रॉस जो होगा वो R2 प्लस R3 के जो होगा मतलब उसके बराबर होगा। और ये होल यानी तुम इस बीच वाली ब्रांच को हटा दोगे तो E1 और E2 की वजह से जितना आना होगा इन सबका मिला के जीरो एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे फ्रॉम फॉर एग्जांपल ABEFA, ठीक है, इस लूप में VA माइनस VB, हर VA माइनस VB इज इक्वल टू प्लस VB माइनस VE, हमने वही करा है, कुछ भी निकाल के वो जीरो होगा एट द एंड। अब इतनी ये चीजें हैं, थोड़ी सी ये याद रखना, याद भी नहीं रखनी है, कॉमन सेंस है। रजिस्टर में कुछ भी आ रहा होगा, रजिस्टर सेंस उसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो वो एज आई मतलब हमेशा सेम ही तरीके से एक्ट कर रहा होगा। डिपेंड हमारा कहता है हम लूप की डायरेक्शन क्या ले रहे हैं। लूप में अब हमने जैसे VA माइनस VB लिया है, तो अब हमें पता करंट किस तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ, यानी A से B जा रहा है तो यहाँ हाई था यहाँ लो था पोटेंशियल, VA माइनस VB ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि R नेगेटिव नहीं होता कभी। और लेकिन हमने इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, लेकिन हमारा लूप हमने लिया है राइट साइड में, तो लूप में इसको हम नेगेटिव देंगे क्योंकि लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से जा नहीं रहा है, हमने माना है कि ऐसा जा रहा है, ठीक है, जा भी सकता है डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स इन द सर्किट। अब VA माइनस VB, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा ए वाली साइड है, इसका पोटेंशियल हायर है इसका कम है, तो ये प्लस ही क्रिएट इसको मानोगे। और ये VA माइनस VB VA यानी ये तो जीरो न्यूट्रल वाली साइड है, जीरो भी नहीं कहते इसे ऐसे।
और राइट वाला है उसमें हाई पोटेंशियल है, तो दैट मीन्स ये होगा नेगेटिव वाला। सिंपल, याद रखने लायक है भी नहीं। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है जब करंट पास करे इससे। नो डिफ्लेक्शन मतलब आई इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड और माइट बी जीरो। कई बार हम एमीटर भी यूज कर लेते हैं, बढ़िया सा है कोई, या फिर हम गैल्वेनोमीटर में भी बना सकते हैं कि कांस्टेंट रहे शायद, जो आई गेस। डिफ्लेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या फिर मतलब वही बात होगी कि ऑन ऑफ कर रहा हो, या तो तुम ऑन ऑफ करो या फिर तुम मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, तो डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें मतलब सीधी बात होती है कि मतलब इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है, और बैलेंस्ड उसे तब कहते हैं जब गैल्वेनोमीटर में से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। यानी डिफ्लेक्शन यार मतलब थोड़ा टर्म थोड़ा इसके लिए वेग है डिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि तुम लगा के छोड़ दो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये बात है कि जब तुम मूव भी कर रहे हो वो उस पॉइंट पे आकर रिफ्लेक्शन शो नहीं करता, क्योंकि उसमें करंट नहीं जाएगा फिर गैल्वेनोमीटर से। और करंट ना जाने का सीधा मतलब क्या होता है, यानी ये जो ये एंड है और ये एंड है, I1 और I2 जहां मैंने लिखे हुए हैं, इन दोनों पर पोटेंशियल बराबर है। पोटेंशियल बराबर है तो करंट तो फ्लो नहीं करता ना, ठीक है। तो नो पोटेंशियल यानी पोटेंशियल बराबर है, एंड सॉरी करंट नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक्चुअली, पोटेंशियल ड्रॉप। तो करंट तो नहीं होने वाला है। तो इसमें हम लेंगे I1 एंड जी सब अलग है, ठीक है। तो करंट यानी अब इसमें हम करंट की बजाय पोटेंशियल ड्रॉप लो यार। पोटेंशियल ड्रॉप हमारा ये रहेगा व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अब उसको हमने सॉल्व करा कि वी ए माइनस वी बी ऐसे करके उसको हमने I1 R1 और I2 लिख दिया। I1 एंड I2 हम ऐसे लिख देंगे रेशियो लेके, तो रेशियो लेके जब I1 R2 कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये वाला R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। सीधे शब्दों में एक तरीके से जिस तरह का अरेंजमेंट है ना, उसमें इन दोनों के बीच में डैश लगा दो, यानी डिनोमिनेटर और बीच में इक्वल टू लगा दो गैल्वेनोमीटर की जगह। वो इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब एग्जांपल मतलब जस्टिफिकेशन भी नहीं, याद रखने का तरीका। ये है तुम्हारा गंदा डायग्राम बना रहा बहुत ज्यादा। ये R1 है, ये R2 है, R3, R4 दिख रहे हैं ना, ऐसे बनाया मैंने। अगर इसको तुम्हें बैलेंस करना है ना, गैल्वेनोमीटर की जगह तो इज इक्वल टू लगा दो और इसके बीच में यहाँ डिनोमिनेटर लगा दो, सीधे जो तुम्हें R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। मीटर ब्रिज, अब मीटर ब्रिज होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस कंपेयर करने के लिए या फिर कई बार कैलकुलेट भी करने के लिए, ऊपर वाली चीज को निकालने के लिए। ऊपर वाला हम करंट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मान लो हमें 3 पता होंगे, इनमें से एक नहीं पता होता, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज कर लेते हैं। सेम चीज यहाँ करते हैं हम, ठीक है। अब हम स्लाइड करते हैं जॉकी को। चलो मैं इसको ना पूरा मैं समझाता हूँ, बहुत देर होगी कुछ बना हुआ है। ये हमारा मीटर ब्रिज वाला डायग्राम है। ये यार डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैं मान लो मैंने बड़ा कर दिया इनको, ठीक है। यहाँ से अब ये है मेरी वायर, मीटर ब्रिज की वायर है। अब इस वायर में ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और ये इसके नीचे इसकी कोई लेंथ होती है। ये स्केल है तुम्हारा यार, इसको सीधा कर लेना, मैं आदत नहीं है। और ये है अब हमारा गैल्वेन, ये जॉकी, और इस पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। इसका मीनिंग क्या है? मान लो अब हमें ये रेजिस्टेंस पता है और ये है एक्स, हमें ये नहीं पता। हमने वहां क्या पढ़ा था कि वो, मान लो एक मिनट पहले बता देता तुम्हें, बैलेंसिंग लेंथ होती है, ये एल है और ये 100 माइनस एल। यहाँ मीटर बेज मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर तो 100 माइनस एल, 100 सेंटीमीटर माइनस एल, ठीक है। ये दोनों लेंथ होगी अपने इंडिविजुअल। 100 माइनस एल, वहां हमने पढ़ा था कि
ये जो चीज होती है इसमें जो भी यहाँ बना देना, जो भी कंपोनेंट्स हैं इसके अक्रॉस, अब ये देखने में ऐसा ही नहीं लग रहा है, ये चीज बिल्कुल आर जैसी लग रही है, ये चीज एक्स जैसी लग रही है, बट अब ये दोनों कहाँ है? अब मैं ये नहीं कह सकता इस वायर का भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस होगा कुछ, इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है इन्वायरमेंट कंसिडरेबल कि आप कैलकुलेट कर सको उसको। तो इन दोनों का भी तो कुछ रेशो होगा, हमें एट द एंड तो रेशो चाहिए, हमें क्या मतलब, अब ये है एल वाले कंपोनेंट की वजह से रेजिस्टेंस ड्यू टू एल, एंड ये रेजिस्टेंस ड्यू टू 100 माइनस एल। हमें क्या करना है, इक्वेट आर बाय आर एल शुड बी इक्वल टू एक्स, तो नहीं तो ठीक है, एक्स अपॉन आर 100 माइनस एल। इनमें से अब हमें ये पता है, मतलब ये तो पता ही है, इन दोनों के लिए अब हम क्या करेंगे, या फिर तुम एक काम करो, मतलब अभी चलो मैं तुम्हें बताऊंगा इसका भी। अब ये चीज जो हमारी लेंथ है, लेंथ पता अभी हमें, आर नहीं पता ना, ये अभी तुम्हें मैं उसमें दिखाऊंगा नोट्स में, लेकिन हमें एक्स निकालना है, एक्स को एक साइड रख दो और बाकी को एक साइड लगा दो। एक्स इज इक्वल टू आर इंटू आर 100 माइनस एल अपॉन में आर एल, मतलब ये पता है, रेशो ही तो निकालना है, रेशो तो तुम लेंथ का निकाल दो, लेंथ का क्यों निकाल दो अभी तुम्हें दिखाता हूँ। अब हम ये एक चीज हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल मतलब ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ लेके चलते हैं, क्योंकि वायर तो यूनिफॉर्म में सेम वायर है बिल्कुल, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम ले लेते हैं, सिग्मा ले लिया हमने इस केस में, सिग्मा लेना नीचे वैसे, हालांकि सिग्मा इज टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो आर को तो तुम ये भी कह सकते हो सिग्मा एल, तो या तो तुम इसको ये लिख दो, एक्स इज इक्वल्स टू आर सिग्मा एल 100, मतलब एल नहीं, सिग्मा 100 माइनस एल अपॉन में सिग्मा एल, सिग्मा तो गया, देखो यार सिग्मा के ये लेंथ के रेशियो खत्म काम, ये है तुम्हारा मीटर पिच। ये चीज ऐसे याद रखना कि तुम्हें व्हीटस्टोन जैसे बनाना है इसको दिखने में। अब आ रही आती है पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है नो करंट इज ड्रॉन, मतलब वही व्हीटस्टोन वाला सिस्टम। रीजन ऑफ यूजिंग, हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर को मतलब ईएमएफ वगैरह में निकालने के लिए काफी यूज करते हैं। तो वोल्ट मीटर काम कैसे करता है, वोल्ट मीटर का सिस्टम होता है काम करने का कि ये वोल्ट मीटर है ना, उसको कैसे लगाते हो तुम पैरेलल में, हम्म? क्या होता है जब करंट यूं आ रहा हो ना, तो हम क्या बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लेना, कितना हाई ले लोगे तुम, 1000 क्या बोलते हैं 1000 वोल्ट, सॉरी 1000 ओम्स, 10,000 ओम्स। लेकिन ऐसा भी तो होता है नीचे वाला भी बहुत ज्यादा हो, ये खुद भी 1000 हो, 1000 ओम्स के आसपास, तुमने 10,000 भी ले लिया, तो कहाँ टक्कर लोगे तुम इससे, कुछ करंट इससे भी जाएगा तो वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं एक ऐसा मेथड जिसमें ये दिक्कत ना हो, हमारी ये दिक्कत खत्म हो जाए, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट ही ना हो उसके रेजिस्टेंस का ज्यादा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं assumptions, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक चीज होती है जिसको हम लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी एक पर्टिकुलर लेंथ चलने के बाद कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। यानी अगर मैं सिर्फ 10 सेंटीमीटर का एक रेजिस्टेंस ले लूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप, मान लो मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई थी और यही है मेरा रेजिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर ले लो, 6 मीटर यानी पर यूनिट लेंथ, यानी तुम्हारा हर मीटर पे 6 वोल्ट की बैटरी थी, 6 मीटर मेरा वायर है,
हर मीटर पर मेरा 1 वोल्ट गिर रहा होगा। ये तो बात समझ में आ रही होगी। 1 वोल्ट पर मीटर, ये तुम्हारी यूनिट होगी, वोल्ट पर मीटर। और ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम कहते हैं पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है। यूजेस, अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका मेथड, ईएमएफ और बैलेंसिंग, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बाय एक्स यूनिट लेंथ। ठीक है, हम के एक्स ले लिया हमने से, क्योंकि एक्स है तो हमने के लिया, तो एक्स यूनिट एक्स लेंथ के लिए हमारा के एक्स हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। अब ये मैंने लिख दिया E इज इक्वल्स टू के एक्स। अगर E यानी हमारा ये वाला इज इक्वल्स टू के एक्स, ये तो एक सबसे पहले की बात के एल होना चाहिए, मैंने एल ले रखा डायग्राम में। ठीक है, ये मिस्टेक सही होनी पड़ेगी। मान लो एक्स है, टाइम नहीं, तो ये क्यों लिया मैंने, देखो ये है मेरा डायग्राम। ठीक है, अब हमें पता है ये लेंथ है हमारी x, ये फिर x ले लेते चले। ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या हुआ, के x। अब तुम्हें एक बात बताओ, जिस वायर का रेजिस्टेंस है इसको मैं ऐसे नहीं बना सकता, सिर्फ इस हिस्से को देखना, जो बीच वाला हिस्सा है ना, कि यहाँ करंट आया और फिर ये इस पूरे इस एरिया को, मतलब इस लेंथ तक को मैं ले लेता हूँ एक रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू कुछ होगी, आई डोंट केयर। ठीक है, इसके ही पैरेलल में मैंने लगा दिया एक बैटरी, कोई बैलेंसिंग लेंथ थी तो ये यूं गया, एंड ही बचा कुछ रेजिस्टेंस, इसको लगा सकता हूँ। अब कोई एक वोल्टेज आई मेरे पास, वोल्टेज आई, किसी वोल्टेज से आ रहा था करंट। मुझे क्या करना है, इस ब्रांच में से करंट नहीं पहुंचने देना। करंट कब नहीं पहुंचेगा मेरा, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये समथिंग। अब पोटेंशियल ड्रॉप यानी, अब देख ये ई फुल्ली ई की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस का अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों, करंट, हम बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या है, जब इस ब्रांच में से करंट ना जाए। गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, नहीं इस ब्रांच से करंट ही नहीं जा रहा तुम्हारा, तो अगर करंट जाएगा ही नहीं तो हमें ऐसा कुछ, मतलब बैलेंसिंग तब आएगी ना कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है तुम्हारा, यानी के एक्स, पोटेंशियल ड्रॉप तुम्हारा आया है, उतना पोटेंशियल ड्रॉप ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब ये पैरेलल दिख रहा है तुम्हें, पैरेलल है, दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ करंट जाएगा, यहाँ कुछ करंट जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। पैरेलल है तो दोनों अप्रॉक्स, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम है लेकिन हमें करंट जाने नहीं देना। तो तुम उतने ही वोल्ट की, यानी तुम उतना ही ईएमएफ यहाँ से लगा दो कि, मतलब मान लो अगर इसके क्रॉस इतना ड्रॉप आ रहा है के एक्स का, तो इसके क्रॉस भी के एक्स का ही आना चाहिए अगर नॉर्मल सर्किट होगा। मैं के एक्स वैल्यू की ही एक ई लगा देता हूँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ये दिखा रहा था, मैं कह रहा हूँ मेरा भी पोटेंशियल उतना ही है, तो ये कहता है ओके ब्रो मैं इधर जा रहा हूँ। मेसी होगा डायग्राम, लेकिन तुम्हें थोड़ा समझ आ गया होगा, ना समझ में कमेंट से पूछ लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को बड़ी मेहनत लगी थी जब मैं भूल गया था, याद नहीं आया था मुझे। ठीक है, तो उतना ही दे रहे हो जितना इसके क्रॉस आ रहा है, तुम उतना ही कह रहे हो कि ना मैं आने नहीं दूं, मैं मेरे पास है खुद के एक्स, तो जिसमें से करंट भी नहीं जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा एक तरीके से अब ईएमएफ निकालना है हमें। अब इतनी लेंथ गई है, हमें पता है कि सब कुछ, मतलब क्वेश्चन में देख लेना क्या क्या पता है, लेकिन इससे तुम्हें ये याद रखना, ये एक्सप्रेशन कैसे याद रखो, क्योंकि हमने ई इज इक्वल्स टू के एक्स क्यों लिखा। लॉजिक के लिए वीडियो देखो, देखो स्मार्ट हूँ मैं, वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें, कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, अब जे ए जे वन, यर्श, मतलब ये थोड़ा समझाने में पटांग सा हो जाएगा, बट ये है कि इस पॉइंट से J1 तक की लेंथ हमारी हमने अज्यूम कर ली है AJ2 समथिंग KL2, मतलब L2।
ये हमारी लेंथ है, हमारी जो हमने ली है, ये यूं यूं zigzag करके, ये हमारी L1 है, ये L2 है। यहाँ तक ऊपर वाला लॉजिक देख के हम ये बोल सकते हैं EMF इज इक्वल्स टू KL1 KL2। ठीक है, दोनों के इसमें। अब तुम पूछोगे ये 1 और 2 का क्या सीन है। 1 और 2 का मतलब है कि जब एक बार तो तुम्हारा ये E1 था सर्किट में, E1, ये एक्चुअली सर्किट होता कैसा है कि सीधे शब्दों में हमने चेंज कर दी, ये 2 वे की होती है। एक बार हम इसको यूं कनेक्ट करते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। एक बार हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो निकालेंगे बैलेंसिंग लाइन, जिसमें E1 हमारा सर्किट में होगा, क्योंकि उस टाइम E2 का सर्किट है ही नहीं, तो E2 तो काउंट होना नहीं है। फिर हम एकदम से इसको चेंज करके ये दोनों कनेक्ट करते हैं कि एक बार हम यहाँ डालेंगे और एक मिनट और, एक बार की इनके बीच में डालेंगे, एक बार की इनके बीच में डालेंगे। मतलब दोनों एक बारी में दोनों को अटैच नहीं करना, इंडिविजुअली दोनों को अटैच करना, ताकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट बैलेंसिंग लेंथ आए। अब कंपेयर ही करना है तो इसको हम E K1 लिख सकते हैं और इनका फिर रेशियो ले लो, K तो कट ही जाना है, L1/L2 ऐसे कंपेयर हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी बैलेंसिंग लेंथ के हिसाब से तुम EMF कंपेयर कर सकते हो, है ना मस्त चीज। अब कैलकुलेटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, ये थोड़ा है इम्पोर्टेंट। ठीक है, AN1 सेम वही, AN2 L2 है तुम्हारा। व्हेन K2 इज ओपन, ओपन मतलब सर्किट में नहीं है, E इज इक्वल्स टू KL1। ये तो सीधी चीज वही है ऊपर वाली जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। ठीक है, कि मतलब हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अभी हमने काउंट नहीं करा, ये हमारा फर्स्ट केस वाली हो जाती है। तो तुम्हें कीज ओपन वाला केस तो समझ आ जाना चाहिए सिंपल। अब नाउ की K2 इज क्लोज्ड, तो ये जितना तुम्हारा करंट, मतलब सबसे पहले तो क्या लिखा है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, AN1 इज ओपन, ठीक है, ये सब तो हो गया। ठीक है, KL1। अब जो हमारा E है, E को हम फर्स्ट केस में जैसे हमने करा, E इज इक्वल टू B बाय, मतलब KX लिखा था ना हमने वहां, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ प्रोवाइड कौन कर रहा है, B, यानी हम इसको B बाय L लिख देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप को जो हम K लिख रहे हैं तब तक उसको B बाय L लिख दिया, इनटू बैलेंसिंग लेंथ L1। ये हम लिख सकते हैं फर्स्ट केस में जब हमारी की क्लोज थी, की ओपन, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हमने, अब जब की क्लोज कर दिया है तो करंट इन बी, ये दिख रहा होगा तुम्हें, करंट बी में इस सर्किट में जीरो हो जाएगा क्योंकि बैलेंस कर दिया। इस सर्किट में कोई इसको अपोज करने वाला नहीं चलेगा। ठीक है, अब बी बाय एल L2 यानी तुम्हारी अब वाली बैलेंसिंग लेंथ है जो इस सर्किट की, जिसमें सब कुछ आ रहा है, इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब आई आर मतलब क्या हुआ, सबसे पहली चीज यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये मैंने मिस कर दिया था। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस डायग्राम में तो मिला नहीं एक्चुअली, तो E माइनस आई आर है। इसका मीनिंग है, यानी तुम्हारी जो बैलेंसिंग लेंथ है E माइनस आई आर, मतलब इस सर्किट में करंट जा रहा है ना, तो इसको तुम E माइनस आई आर लिखोगे, यानी ये जो अब पोटेंशियल ड्रॉप प्रोवाइड कर रहा है E माइनस आई आर शुड बी इक्वल टू, क्या लिखा हमने, B बाय L L2। इसका मतलब क्या हुआ, KL2। KL2 को हम क्या लिख सकते हैं, KL2 हम लिख सकते हैं B बाय L, और K बाय L2 यानी इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग है इसका, हमारा जो अब इंटरनल, मतलब अब तक हम उसमें जीरो रख रहे थे, लेकिन अब जब उसमें करंट भी जा रहा है तो अब एक नई वैल्यू के लिए, यानी इस एक वी के लिए कौन सी बैलेंसिंग लेंथ होगी, सेम चीज होगी, लेकिन इस बार हमें अकाउंट में लेना है इंटरनल रेजिस्टेंस भी। ठीक है, अब E माइनस आई आर को हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस E बाय आर प्लस आर, क्योंकि उसमें दोनों आ रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला भी और स्मॉल तुम्हारा वो भी, इज इक्वल्स टू KL2। KL2 को भी अब हम यही चेंज कर देते हैं। ठीक है, K को हम लिख देते हैं
बी बाय एल, हमने अभी यही निकाला था ना ये, बी बाय एल इज इक्वल टू बी बाय एल एल टू, सॉरी इसको हटाओ, अब थोड़ा सीधे लिखने की कोशिश करता हूँ। ई को हम लिख सकते हैं जैसे हमने अभी पीछे लिखा था, बी बाय एल एल वन माइनस बी बाय एल एल वन वन बाय आर प्लस आर इज इक्वल टू बी बाय एल एल टू। बी बाय एल कॉमन आ रहा है हर जगह से, काट दो। क्या लिख सकते हैं अब हम, एल वन कॉमन ले लिया, वन माइनस वन बाय आर प्लस आर, सॉरी ये यहाँ छोड़ दिया था मैंने, तो ये भी आर हो गया, आर प्लस आर इक्वल्स टू एल टू। ठीक है, इसको मैं और आगे जाके लिख सकता हूँ कि एल वन एलसीएम लिया, आर प्लस आर माइनस आर, वन आर प्लस आर इक्वल्स टू एल टू। आर तो कट गया, इसको हटाओ यार। ठीक है, ये आर प्लस आर हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ एल वन आर इक्वल्स टू एल टू आर प्लस आर। हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। लेट्स सॉल्व इट। एल वन आर माइनस एल टू आर इक्वल्स टू एल टू आर, सॉरी स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर इंटू एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू। ये तो मैं अपने कन्वेंशन के हिसाब से देख रहे हैं क्या होगा। ठीक है, बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसका। whenever current flows through a conductor it heats up and electric energy is converted into heat energy। ठीक है, एच को हम लिख देते हैं वीआईटी, याद रहे कॉलेज का नाम है वीआईटी, याद रखो। अब डिपेंडिंग ऑन हमें क्या गिवन है, तो वी को हम आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, आई और आर के फॉर्म में, विच गिव्स आई स्क्वायर आर टी, यानी आई आर लिख दिया अगर, और आई को हम लिख सकते हैं वी के फॉर्म में, यानी वी बाय आर, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर टी आ जाएगा उससे। तो इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो आप। ऐसा यूनिट जूल्स होता है, सीधी बात है। एनर्जी है, एनर्जी जूल्स होगी। ठीक है, किलो जूल्स और ये मेगा जूल्स, इनका तुम देख लेना, ये याद होगा तुम्हें। कॉज वाइब्रेशन एंड कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेरी मच अंडरस्टूड, बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अप्लायंस इन सर्किट, H इज इक्वल्स टू वी आई टी। ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर जो भी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तुम्हारी। अब सेम चीज ही होती है, हमारा फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन तुम ये देखना एनर्जी कंज्यूम बाय अप्लायंस पर आ रहा है और ये हीट एनर्जी बन रही है, तो ये चीज थोड़ा समझ के रखना। फॉर्मूला सेम है, क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे नहीं जाते इस पे। अब ये 1 किलो जूल मेगा जूल दोनों में सेम है, लेकिन 1 यूनिट ये तुम्हारा अब बिजली की खपत की बात हो रही है अगर तो हम देखते हैं 1 यूनिट। तुम्हारा जो बिल आता है 6 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट, जो भी है तुम जिस एरिया में रह रहे हो, यूनिट मतलब होता है 1000 जूल्स, यानी 1 किलो जूल के हिसाब से। इलेक्ट्रिक पावर, पावर किसी की बात करता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और हमने भी पढ़ा है एनर्जी कंज्यूम्ड, फिर वर्क डन बात तो हुई है, और ये भी वर्क डन वैसे टाइप का। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को टी से डिवाइड कर दो, वी स्क्वायर बाय आर आई स्क्वायर बाय आर, टी हट के जब से। अब ये भी एक चीज है, और पावर ये सीधी बात, मतलब देख लेना तुम्हें क्या लिखा मैंने। अप्लायंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस आर बी स्क्वायर बाय डब्ल्यू वन, मतलब डब्ल्यू वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर वन होगा ना, उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर वन की वैल्यू ये, आर टू ये है, और फिर हमने नॉर्मल सर्किट की तरह से सॉल्व करा, वन बाय आर वन इज इक्वल टू, मतलब वन बाय आर इज टू आर वन, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि टोटल पावर कंज्यूम्ड यानी तुम्हारी डब्ल्यू होगी वी स्क्वायर बाय आर, मतलब एक जनरल में वी तो हमारा कॉमन ही है जगह,
आर हमने ले लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बार, अब हमें वी स्क्वायर कट गया तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू टू, यानी पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो पावर अलजेब्रिक सम होता है। मतलब जैसे टीवी, लैपटॉप, अब घर में सारे हमारे वो होते हैं, पैरेलल में अटैच होते हैं। तो मेरा अगर लैपटॉप ले रहा है 65 वॉट, टीवी ले रहा है मेरा 100 वॉट, तो दोनों का ऐड कर सकता हूँ मैं। 165 वॉट मेरे हर घंटे की यूनिट जाएगी, यूनिट नहीं, 165 वॉट में हर घंटे खाऊंगा, ठीक है। इन सीरीज अगर सीरीज में लगा देता तो वी स्क्वायर बाय डब्ल्यू वन, वही बात हो गई। हमने अभी सेम चीज करी है, अब आर ऐड करा, आर ऐड करने पे जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा वो रेजिस्टेंस वाला जैसे फॉर्मूला बन गया। अब तुम कहो कि पावर कम कंज्यूम हो रही है, बिजली का बिल कम आएगा, तो ये वाला क्यों यूज करते हैं? दिक्कत ये है पोटेंशियल हर एक के अक्रॉस सेम नहीं रहेगा, डिपेंडिंग तुम्हारा प्लान्स क्या है, तुमने क्या क्या लगाया है, पोटेंशियल सबके अक्रॉस अलग आ जाएगा। तो ये हम इसीलिए हम पैरेलल में नहीं रखते, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए यार तुम ये याद रखो, जब भी तुम्हें कोई मैक्सिमम निकालना हो ना, एक्सप्रेशन निकालो जनरल, उसको वो कर दो, डेरिवेटिव ले लो, या तो उसका मैक्सिमम आ जाएगा मिनिमम आएगा, मैथ्स में पढ़ा ही होगा। तो हमने यहाँ भी यही करा, आई स्क्वायर बाय आर लिख दिया, आई स्क्वायर, आई को हम लिख दिया ई अपॉन आर प्लस आर, यानी इंटरनल और दोनों मिला के, और फॉर मैक्सिमम तो हमने डी पी इज इक्वल्स टू जीरो लिख दिया, डी पी बाई डी टी होना चाहिए था, सॉरी सॉरी, डी पी बाई डी आर, डी पी बाई डी आर शुड बी जीरो, ठीक है। तो डीपी हमने फिर इसको वो लिया, डेरिवेटिव लिया, सॉल्व करा, सब कुछ ये आर और आर तो कट ही गए हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर आर माइनस, मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा है, तो आर इज इक्वल टू आर होगा। क्वेश्चंस के लिए ये सारी जगह है, सब कर लेना। बुक खरीदनी हो मैं सजेस्ट अब करूंगा उस साल वाली, तो अभी नया आ गया ना, तो उस साल वाली तुम खरीद लेना, सस्ती है, काफी ज्यादा सस्ती है, मतलब पूरा सेट मिल रहा है तुम्हें 300 350 के आसपास में, 350, 300 तो नहीं, तो यू कैन ट्राई इट, जॉइन द अपडेट ग्रुप्स एंड, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो बस इतना ही, एंड एक बार ना मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि इंग्लिश में सही रहेगा या हिंदी में, मतलब ठीक है, आई एम बट बिट कंफ्यूज्ड। मैं चाहता था ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, पर अगर मेजोरिटी को इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती, बिकॉज मतलब कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में तुम पढ़ाई करो, तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करूंगा फिर, ठीक है। ये सब लिंक्स हैं, कर लेना। एंड इफ यू वांट यू कैन टेल मी कि मैं मतलब लग नहीं रहा यार, काफी कॉलेज की वजह से काफी ज्यादा टाइम मेरा जा रहा है, तो इफ यू वांट मैं चेंज कर सकता हूँ इसे, मतलब मैं सीधा सेमेस्टर 2 का स्टार्ट करवा दूँ, तो बट वो ही है, मैं ज्यादातर ऐसी चीजें करवा रहा हूँ जो एमसीक्यू में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी तुम्हें, बस। बाय।